بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں ملک کے مختلف علاقوں میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ یکم ذوالحج کل بروز منگل کو ہوگی۔ رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان میں عید الاضحیٰ 29 جون بروز جمعرات کو ہوگی۔ ملتان میں زونل رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ علامہ مجاہد عباس گردیزی، مفتی کاشف فریدی، علامہ غلام شبیر حیدری سمیت دیگر کی شرکت۔ زونل کمیٹی میں ملتان اور گرد و نواح سے چاند کی شہادتیں بھی اکٹھی کی۔ عید ہوگی ٹھنڈی ٹھار۔ جنوبی پنجاب میں عید کے تینوں ایام بارش کا امکان۔ رواں ہفتے درجہ حرارت بڑھنے کا امکان۔ 20 سے 24 جون تک گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ جنوبی پنجاب میں دن کا درجہ حرارت 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں اضافے سے بجلی اور پانی کی طلب میں اضافہ ہوگا۔ ڈی پی او ایم اے کسانوں کو موسمی حالات کے مطابق فصلوں کو پانی دینے کے مناسب اقدامات کے بارے میں ہدایت کر دی ہے۔ پنجاب کا 4 ماہ کے لیے 17 خرب 19 ارب کا بجٹ منظور۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ پینشن میں 20% تک اضافہ۔ 80 سال سے زائد عمر کے لوگوں کے لیے 20%، 80 سال سے کم عمر والوں کے لیے پینشن میں 5% اضافہ کیا گیا۔ تنخواہوں میں پینشن کے لیے 719 ارب مختص کیے گئے۔ میں کابینہ اجلاس میں بجٹ کی منظوری کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی نگران وزراء کا کہنا تھا کہ پنجاب کے بجٹ کا حجم 1719 ارب روپے ہوگا، جس میں 325 ارب جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں وفاق کے فارمولے کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا۔ تعلیم کے لیے 195 ارب، صحت کے لیے 183 ارب سے زائد مختص کیے گئے ہیں۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی مد میں 70 ارب روپے عوام کو براہ راست فراہم کیے جائیں گے۔ 4 ماہ کا ٹوٹل جو لے آؤٹ ہے بجٹ کا، وہ بشمول آمدن اور اخراجات، وہ 1719 ارب روپے ہے، جس میں 881 ارب روپے ٹیکس ریسیٹس میں وہ وفاق کی طرف سے آئیں گی، جبکہ صوبہ پنجاب جو ہے وہ اپنے طور پر 194 ارب 194 بلین روپیز اکٹھے کرے گا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ صوبائی وزیر احسن تنویر نے کہا کہ صوبائی سطح پر آئی ٹی پر عائد تمام ٹیکسز کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ زراعت کے لیے 47.6 ارب کی امراءات لائی جا رہی ہیں۔ سٹیمپ ڈیوٹی کی شرح 1% ہی رکھی جا رہی ہے۔ جاری ترقیاتی اسکیموں کے 50% کو آئندہ 4 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ جتنے بھی گورنمنٹ کے ملازمین ہیں اس کی 30% سیلری کو انکریز کر دیا گیا، اور جو ملازمین جن کی ایج 80 سے پلس ہے اس کی سیلری 20% کو انکریز کیا گیا اس بجٹ میں۔ پنجاب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو بزنس ہے، جیسے آئی ٹی سے ریلیٹڈ بزنس ہے، انڈسٹریز ہے، ایجوکیشن ہے، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں، ان سب پہ سیل ٹیکس ختم کر دیا گیا۔ نگران حکومت نے پنجاب کے 4 ماہ کا بجٹ منظور کر دیا ہے، جس میں عوام کو 70 ارب روپے ریلیف۔ پنجاب کا 4 ماہ کے لیے 1719 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ ملتان کے تاجروں اور صنعتکاروں نے ریلیف نہ ملنے پر بجٹ مسترد کر دیا۔ زراعت کے علاوہ کسی شعبے کو خاص ریلیف نہیں ملا۔ تفصیلات جانتے ہیں اون عباس کی اس رپورٹ۔ پنجاب حکومت نے اگلے 4 ماہ کے لیے 1719 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا۔ سابق صدر چیمبر آف کامرس خواجہ حسین کا کہنا تھا کہ بجٹ توقعات کے برعکس ہے۔ زراعت کے علاوہ کسی شعبے کو خاص ریلیف نہیں ملا۔ بجٹ میں صنعتکاروں کے لیے تو کوئی سپورٹ نہیں کی گئی، کیونکہ ہم حالات کو بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ اچھی چیز جو ہے وہ سیلریز میں اضافہ کیا گیا ہے، پینشن میں اضافہ کیا گیا ہے، ایگریکلچر کو سپورٹ کیا گیا ہے، آئی ٹی سیکٹر کو بھی اگنور کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے 4 ماہ کا ایک بجٹ دیا ہے، انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کیا گیا۔ صدر جنوبی پنجاب چیمبر آف اسمال ٹریڈرز طارق کریم کا کہنا تھا کہ بجٹ میں تاجروں کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ بجٹ میں صنعت کاروں اور تاجروں کو ریلیف ملنا چاہیے تھا۔ بجلی اور گیس اور جو بنیادی ضروریات کی ہے ان میں کوئی کمی نہیں کی گئی، اور سیکنڈ یہ ہمارا جو ریلیٹڈ بزنس ہے اس پہ کوئی ڈیوٹیز وغیرہ کم نہیں کی گئی، وہی ڈیوٹیز ہیں، بلکہ وہ جو 1380 سی سے اوپر کی گاڑیاں ان پہ کیپ تھا وہ ہٹا دیا گیا۔
ताजिरों का मजीद कहना था कि हुकूमत को अवाम दोस्त बजट के साथ साथ ताजिर दोस्त बजट पेश करना चाहिए था। कैमरामैन मुगीस शहजाद के साथ ओन अब्बास, मुल्तान। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, जुल्हज का चांद नजर आते ही मवेशी मंडियों में शहरियों का रश बढ़ गया। मोजा सामुराना की मवेशी मंडी में शहरियों और व्यापारियों के दरमियान बहस व तकरार का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम शहजाद से। जी आगाह कीजिएगा वसीम। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा की आमद है और साथ बात करते चलें अगर जिलहज की, तो जिलहज का चांद जो है वो नज़र आ चुका है, जिसके बाद मुल्तान की मवेशी मंडियों की रौनकें जो हैं अब वो दोबाला हो चुकी हैं। बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की इस वक्त मवेशी मंडी के अंदर पहुंच चुकी है। भाव ताव जो हैं वो भी चल रहे हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए मंडी की क्या सूरत हाल देखते हैं, और आज जैसे चांद नज़र आया है अभी कुछ देर पहले, आप खुद भी यहाँ पर जो है वो ख़रीदने के लिए आ गए हैं, क्या खरीदने आए हैं, क्या कहेंगे? सर जी, ये सुन्नत इब्राहिम के लिए बकरे का ज़ेन बनाकर आए हैं और इंशाअल्लाह ताला इस कुर्बानी के साथ वो भी कुर्बानियाँ याद रखेंगे जिसकी वजह से ये कुर्बानी है। यानी कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी ईदें आपके साथ हैं, तो मेरा इल्तमास है तमाम सुनने वालों को कि उनको भी याद रखें जिनका आपके अलावा कोई नहीं है दुनिया में। बाकी मैंने बकरा लिया अल्हम्दुलिल्लाह और रवाना भी कर दिया। मेरा भाई आसम मुनीर मेरे साथ आया था, उसको देके मैंने रवाना कर दिया। मोहम्मदपुरी बकरा लिया और बड़ा मुनासिब से रेट में मिला। बाकी महंगाई का दौर है, नफसा नफसी दौर में दुनिया जो खरीद कर सकती है वो कर रही है। वो कर रहे हैं, इस्तात जो है वो शहरी अपनी उसके मुताबिक देख रहे हैं। आपने जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल में कौन सा जानवर देखा, रेट चढ़े हुए हैं या कम हैं, क्या कहें? देखो, जिनके पास अगर पैसा है तो कोई रेट नहीं है, जो कुर्बानी करनी है उसमें कोई रेट नहीं होता, सस्ती हो या महंगी हो, जिसने करनी है। जिसके पहुँच से दूर है तो फिर दूर है उसके। सफ़ेद पोश और गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। मेरा एक मैसेज होगा तमाम मुसलमानों को कि जो भी कुर्बानी करे ईद वाले दिन गोश्त वहाँ पहुँचाए जहाँ कुर्बानी ना हुई हो। जो गरीब हो, गरीबों में लाजमी दे। जो इनकी आस पे बैठे होते हैं कि गोश्त चौधरी साहब के घर से आएगा, मलक साहब के घर से आएगा, उन तक ज़रूर पहुँचाए। गोश्त जो है वो पहुंचाया जाए। बात करते चलें तो इसी मंडी के जो सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, महंगाई का दौर है, आप भी यही चाहते होंगे कि हर बंदा जो है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करे। आप लोगों की जानिब से, आप व्यापारी हैं, क्या सहूलत जो है वो शहरियों को दी जा रही है? आज तो शहरियों का बहुत ज़्यादा रश जो है वो हम इस मंडी में देख रहे हैं। नहीं, इसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं कि महंगाई की वजह से महंगाई इतनी हो चुकी है कि हर चीज़ में महंगी गई। सिर्फ ये बकरों को नहीं खरीदो फरोख्त महंगी हुई, डॉलर महंगा हो चुका है। पूरी पाकिस्तान की कोई ऐसी चीज़ नहीं कोई सस्ती हो। लेकिन अगर इन्होंने बड़ा इंतजाम किया है मंडी में, हमने हर जगह पे इंतजाम किया है, सफाई का, टेंट का, कस्टमर का आने जाने के लिए, किसी को कोई परेशानी इशू ना हो। तो हर आदमी आ रहा है, फैमिली के साथ आ रहे हैं, रात को आए, दिन को आए, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। अच्छा, आप भी साथ ही मौजूद हैं, बताएं मंडी की क्या सूरत हाल है? कोई महंगाई तो नहीं है यहाँ पर? और कौन सा बकरा खरीदना है, कामयाब हो पाए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो नहीं हुए, काफ़ी महंगे हैं जानवर। इस वक्त जानवर जो हैं वो ज़्यादा महंगे हैं, मतलब ज़्यादा रेट का बता रहे हैं, उसके जो कंपेटेबिलिटी नहीं है कीमत की और उसकी। ऑब्वियसली महंगाई तो है लेकिन वो ज़्यादा है, कुछ यहाँ पे ज़्यादा हो गई है। अच्छा, शहरी हैं, उनका इस हवाले से ये कहना है कि मंडी में रेट्स जो हैं वो इस बार कुछ ज़्यादा हैं पिछले साल की निस्बत, और ख़ासा मुश्किलात का सामना जो है वो भी करना पड़ रहा है। लेकिन सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी तो करनी है, उसके लिए शहरी उस हवाले से जो है वो बड़ा जानवर ना सही, छोटे जानवरों की तरफ जो है वो शहरियों का ज़्यादा रुझान नज़र आ रहा है। वसीम शहजाद आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ईद कुर्बान करीब आते ही करोड़ लाल ईसन में भी मवेशी मंडी सजा दी गई। मवेशी मंडी में हर रंग व नस्ल का खूबसूरत जानवर मौजूद है। मवेशी मंडी में आवाम का रश तो है लेकिन जानवर खरीदने वाले कम दिखाई देते हैं। व्यापारी और शहरी महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं। तफसीलात के लिए करोड़ से देखेंगे मोहम्मद आसिफ खान की ये रिपोर्ट। ईद कुर्बा की आमद में सिर्फ चंद रोज बाकी, करोड़ लाल ईसन शहर में भी मवेशी मंडी सजा दी गई। बढ़ती महंगाई ने ईद कुर्बा की खुशियों के रंगों को भी फीका कर दिया। शहरी कुर्बानी के जानवर खरीदने मंडी तो आ रहे हैं मगर जानवरों की कीमतें सुनकर मायूस नजर आते हैं। मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ रश बहुत ज्यादा गाह खे कहना ठीक है, ਜਿਹੜੇ शौक नाल लोगां इन्हां दी मेहनतां कीतियां होईयां माल ते विकरा कहने बिल्कुल ही टाइम पोजीशन ये बनी खड़ी है भाई अगर माल रखण गिनण वाले जेड़े 1000 बंदा अगर तो खरीदार विच 100 ही को नहीं। सुन्नत इब्राहिमी लोग मजबूर इन, कोई सस्ता को लेंदे वजन सस्ता है कहना, इतनी महंगाई है। असा हुकूमत सारी इल्तजा है कि कोई महंगाई घट की वने ते गरीब लोग जेड़े ना
कोई अपने सिस्टम चला सके। किन क्या आखना चाहे पहले पूछा हूँ भला कोई पूछते ही नहीं। हुकूमत को यह आखना चाहने भाई कोई बेहतरी करन, मंडियां के हालात कोई महंगाई ज्यादा है, कोई खिंदन। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस मर्तबा जानवर ज्यादा महंगे हैं। मवेशी मंडी में आवाम का रश ज्यादा है मगर लोग जानवर खरीद रहे हैं। शहरी कहते हैं कि गुज़श्ता साल जो बकरा 40,000 का था वैसा अब 1 लाख रुपए में मिल रहा है। आए रोज बढ़ती महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मुश्किल कर दी है। आजकल महंगाई बहुत ज्यादा है ते व्यापारी बहुत कम आए ने ऐसा लगे इस मंडी दे विच ते खरीदारी बहुत कम है। मुकामी लोग आए ने ते बाहर दा व्यापारी है ही नहीं है ते महंगाई बहुत ज्यादा है इस टाइम। हालात मंडी दे बहुत घाट है, मंडी डाउन है। पिछली मंडी भी इवें आई लेकिन ये मंडी भी बहुत घाट है। जानवर देखो तुसा डिटे सन पहले भी चेक की जानवर अच्छे हैं लेकिन इनकी कीमत कौन है। मवेशी मंडी में व्यापारी और मवेशी पाल हजरात का मौकफ है कि जानवरों को साल भर बड़े शौक से पालते हैं। जब मंडी में जानवर बेचने आते हैं तो रेट कम लगता है जिससे इनका खर्चा भी पूरा नहीं होता। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बढ़ती महंगाई को काबू किया जाए ताकि आम आदमी भी ईद की खुशियां मना सके। कैमरा टीम के साथ आसिफ खान, रोहित, करोला लीसन। रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी। डीजे खान के शहरी जानवरों के लिए सजावटी सामान खरीदने दुकानों पर पहुंच गए। किसी ने बकरों के लिए रस्सा झांझर खरीदी तो कोई घुंघरू वाला पट्टा और लैस वाली गानी खरीदता दिखाई दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर इशफाक। ईद कुर्बान की आमद है। डीजी खान के शहरी कुर्बानी के जानवर खरीदने के बाद सजावटी सामान खरीदने दुकानों पर पहुंच गए। किसी ने बकरों के लिए रस्सा और झांझर खरीदी तो कोई घुंघरू वाला पट्टा और लैस वाली गानी खरीदता दिखाई दिया। खूबसूरती है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। फैंसी सामान हमारे पास बड़ा खूबसूरत है और लोग बड़े शौक नाल खरीदते हैं। बड़ी अच्छी वैरायटी हमारे पास। इस मौके पर दुकानदारों का कहना था कि कुर्बानी के जानवरों के लिए सजावटी सामान खसूसी ऑर्डर पर तैयार किया जाता है। शहरी आकर अपनी पसंद की अशिया खरीदते हैं। शहरियों का कहना था कि वो सजावटी सामान खरीदकर जानवरों को मजीद खूबसूरत बनाएंगे। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, तेरा गाजी खान। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं परिंदों के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर। परिंदों के रेट और फीड की कीमतों में 100% इजाफा हो गया। शहरियों का कहना था कि अगर जैसे तैसे कर परिंदे खरीद भी लें तो फीड के लिए पैसे कहां से लाएं। ऑन अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। ये मनाजिर है मुल्तान के जहां खूबसूरत और दिलकश परिंदे महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। एक साल में परिंदों और फीड की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ। शौकीन अफराद परिंदों के दाम सुनकर खाली हाथ लौटने लगे। उनका कहना था कि बढ़ती महंगाई की वजह से परिंदे पालने का शौक खत्म हो गया है। फीड महंगी होने की वजह से शौक कम से कम होता जा रहा है लोगों का भी, और हमें भी सोचने में मजबूर कर दिया है कि हम शौक कंटिन्यू करें या ना करें। हमारा तो हुकूमत से मुतालबा है कि फीड कम से कम उसका रेट लेकर आए ताकि शौकीन हजरात आगे उसका शौक पूरा करें। ताजिरों का कहना था कि रेट ज्यादा होने की वजह से गाहक ना होने के बराबर हैं। परिंदों की खुराक पूरी करना मुश्किल हो गया है। हुकूमत परिंदों की फीड सस्ती करवाए। तो उसमें जिससे फीड महंगी है इसके साथ ये है कि परिंदों की कीमत कम हो गई है। परिंदों की कीमत कम इस हवाले से हुई है कि शौकीन अब रखने अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो जोड़े वापस कर रहे हैं, जोड़े सेल करने। ये अभी आप देख लें, आपके बैठे बैठे सेल करने वाले 4 कस्टमर आए हैं, लेने वाला एक भी नहीं आया। शहरियों का मजीद कहना था कि शौक के हाथों मजबूर होकर अगर परिंदे खरीद भी लें तो फीड के लिए पैसे कहां से लाएं। कैमरामैन मुगीस शहजाद के साथ ऑन अब्बास, मुल्तान। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेस्टिसाइड डीलर्स की हड़ताल। विहाड़ी, हासिलपुर, मियाँ चन्नू, कोट अद्दू, कोट चुट्ठा, फोर्टाबास, लैया और दुनियापुर में ज़रूरी अद्वियात की दुकानें बंद। किसान ज़रूरी अद्वियात खरीदने के लिए मारे फिरने लगे। पेस्टिसाइड डीलर्स का कहना था कि सिर्फ गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ताजरों ने भी पेस्टिसाइड डीलर्स की हिमायत का ऐलान कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिला जवाज कार्रवाइयां नामंजूर। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेस्टिसाइड्स डीलर्स ने हुकूमती इक़दामात के खिलाफ हड़ताल कर दी। विहाड़ी, हासिलपुर, मियाँ चन्नू और कोट अद्दू में ज़रूरी अद्वियात की दुकानें बंद हो गईं। किसान ज़रूरी अद्वियात खरीदने के लिए मारे फिरने लगे। डीलरों का कहना था कि 97% लोग साफ सुथरा काम कर रहे हैं। सिर्फ जाली अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीनियर वाइस चेयरमैन पंजाब अंजुमन ताजरान अरशाद हुसैन भट्टी का कहना था कि पेस्टिसाइड डीलरों के जायज मुतालबात पूरे किए जाएं, वरना ताजिर भी हड़ताल करने पर मजबूर होंगे।
कोट छुट्टा, फोर्ट अब्बास, लिया और दुनियापुर के पेस्टिसाइड डीलरों ने भी शटर डाउन हड़ताल कर दी। ज़रूरी अद्वियात की दुकानें बंद होने से किसानों को मुश्किलात का सामना है। डीलरों का कहना था कि सरकारी अफसरान का हितक अमेज रवैया काबिल कबूल नहीं, मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। ज़रूरी अद्वियात फसलों की जरूरत है, अगर पेस्टिसाइड डीलर की हड़ताल तोल पकड़ती है तो फसलों को शदीद नुकसान पहुंच सकता है, जबकि गैर मियारी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी जरूरी है। रहीम यार खान में पेस्टिसाइड डीलर्स एसोसिएशन और पीसीपीए के मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली। तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में पेस्टिसाइड डीलर्स एसोसिएशन और पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन मुतालबात के हक में सड़कों पर आ गए। रेलवे चौक से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तक रैली निकाली और नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि वो कवानीन और एसओपीज पर मुकम्मल अमल करते हैं। मुकदमात का इंदराज और जालिमाना रवैया काबिल मुजम्मत है। जो ये पेस्टिसाइड इंडस्ट्री पे बदमाशी की जा रही है, नाजायज किस्म की हरासमेंट फैलाई जा रही है, जेर जबर पे FIR दी जा रही हैं, कागज ना होने की वजह से FIR दी जा रही है, हम इसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और हम पूरे डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में ये पैगाम देना चाह रहे हैं और हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की तमाम शटर डाउन हड़ताल की मुकम्मल तौर पे मतलब हम कामयाब हो चुके हैं और हम ये चाहते हैं कि इंशाल्लाह जब तक हमारा ये मुतालबा नहीं माना जाएगा, ये बदमाशी खत्म नहीं की जाएगी, तब तक हमारी ये हड़ताल जारी रहेगी। मुजाहिरीन का कहना था कि अफसरान के हद तक अमेज रवैये से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। पीसीपीए और पेस्टिसाइड डीलर्स बहुत परेशान हैं। इसका मेन मकसद ये है कि हमारी जो तज़हीक है, हम जो एक इज़्ज़तदार तरीके से ये बिज़नेस कर रहे हैं, हमारी जो तज़हीक है इसको है कि भी बंद किया जाए और हमारे ऊपर खाम खा की हरासमेंट और खाम खा के जो पर्चाबाजी और जो सैम्पलिंग और जब बेजा जो है वो हमारे ऊपर जो 6 महकमे मुसल्लत किए हैं, हम आज उसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और हमारे साथ के सामने ये गुजारिश है कि जब तक हमारे ये मुतालबा मंजूर नहीं किए जाएंगे, हम गैर मुआयना मुद्दत तक ये हड़ताल जारी रखेंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर जायज मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।